Hey, good morning everyone. Once again, welcome on my channel CMA Hemant Kumar. As you know that I have discussed so many things in my previous video related to CMA jobs, CMA journey and what kind of CMA experience I have faces during my past 6 experience in manufacturing industry. So first of all, I want to tell you I am not a tutor and I am not a career counselor. I just share my past experience which I faced during the my job course. So today I'm going to discuss about the most important topic which is really helpful to every professionals like CA, CS, CMA, MBA, BCom. So who are a student as well as uh, who are doing already job or who are just searching job after qualify CMA course or MBA, you can say BCom, whatever else. So today I'm going to discuss about the most important topic which is communication skill, but not a completely communication. I'm talking about the English subject. Yeah, you can say a verbal communication, written communication skills, English. So English is a very hot topic in our job course. So as you know that how much importance of English in our life as well as in job life, professional and personal life. Many of professional colleagues and many of professional students I have seen, they read, write, but whenever time to speaks, they might hesitate, feel shy, and lack of confidence, etc., etc. So, and as you know that we are in a competitive world. Every year, thousands of professional pass and come into the market and searching job, and the world is become so competitive. So in these competitive world you have to be prepare with each and every skills, either communication, written, speaking, interview, personal development, etc., etc. So you have to prepare already prior enter in the corporate world. If you are fulfilled with your all technical communication skill, then you are a good product for every industry and market as well. So we are CMAs, we found in मैन्युफैक्चरिंग हब. सो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब में ज़्यादा पाया जाता है और वहीं पे ज़्यादा खोजा जाता है. तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, हाउ मच इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर जॉब लाइफ. सो आई वुड से यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन, रिटन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके अपने अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स है. सपोज यू आर गोइंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना. सो वेन एवर यू गो इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वेर इट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. ओके, वेन एवर यू राइट एनी मेल, वेन एवर यू आर preparing any PPT, presentation, drafting contract, etc. That time, very important. Written as well as speaking, verbal communication also very important. So why it is so important? इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ जॉब करनी है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप रहता है. यू डोंट नो किस तरह का आदमी तुम्हें सामने टकराता है इन ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्किल्स में. वो अगर जानना चाहता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है. जब भी आप जॉब सर्च करोगे तो उसमें हमेशा लिखा होता है कि आपका रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो वेरी गुड होना चाहिए. कहीं कहीं इंग्लिश वेरी फ्लुएंट होनी चाहिए. सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बात करोगे एमएनसी कंपनी में, बिग फोर में, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके क्लाइंट आउटसाइड है, यानी यूरोप से क्लाइंट है, बाहर के क्लाइंट है, वहाँ पे आपको क्या चाहिए? अ गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, मतलब एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला एक्सपर्ट होना ही चाहिए. तो वो क्या करता है कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और बहुत ईजिली कन्विंस और बहुत ईजिली किसी चीज़ को ग्रैब करने का, मतलब कि जहाँ पे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलना हो वहाँ आपकी बहुत हेल्प करता है. तो आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंग्लिश जो है आप पढ़ते टाइम में उसको ध्यान दे के आप उसको करेक्ट कर लो, यानी उसको अपने पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर लो. जो काम आपको फाइनल के बाद करना है या जो काम आप एट द टाइम ऑफ जॉब करोगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उसको इस स्किल्स को प्रॉपरली ही कंसिडर करके उसको करेक्ट कर लो.
So here I'm sharing some ideas you can implement in your personal life during the course of study. So it will help you to improve your English uh, in a very efficient manner, you can say. So there are very few suggestions which you can implement. So here are a few tips which really help to improve your English. So number one, if I'm talking about, अगर आप CMA की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर इंटर और फाइनल स्टूडेंट, तो आई एम होपिंग दैट आपका जो ग्रामर है बेसिक वो आपके लिए मतलब सफिशिएंट है, दैट इज सफिशिएंट इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट. सो इट्स ओके फाइन, आपने इतना पढ़ लिया है कि आपको कोई चीज़ समझ में आ जाएगी जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो, रीड आउट करते हो. सो यू नो बेसिक ग्रामर. सो अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो आई वुड से कि उसको थोड़ा सा टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, प्रिपोजिशंस और थोड़ा नरेशन वगैरह का स्टडी करते रहना चाहिए या कर लेना चाहिए. सो वेरी फर्स्ट स्टार्ट, अगर मैं कहूँ वेरी फर्स्ट स्टेप, तो यू हैव टू नॉलेज अबाउट द बेसिक ग्रामर. देन कम टू द सेकेंड कि आप क्या कर सकते हैं. तो सेकेंड आई वुड से कि यू कैन रीड न्यूज़पेपर every day, every morning. Just not that much ki hourly you have to spend on the newspaper. You have to just go through the small article, business article, any article which you like most. So you can read that regular in your own life. So you have to go for read articles in the newspaper. ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल न्यूज़पेपर ही पढ़े, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो यू कैन रीड आउट एनी आर्टिकल, हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स एक्सेट्रा, सो मेनी पेपर. बट द बेस्ट वन इज़ आई वुड सजेस्ट कि इकोनॉमिक्स टाइम्स इफ़ यू ट्राई फॉर अ बिजनेस न्यूज़, एंड द हिंदू इज़ वेरी गुड. वट एवर यू रीड इन द न्यूज़पेपर, तो उसमें आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, अच्छी अच्छी लाइनें मिल जाती हैं, तो आपको उनको नोट डाउन कर लेना है, अपने एक सेपरेट नोटबुक बनानी है. सो लिस्ट ऑफ यूजफुल वर्ड्स, उनकी लिस्ट बनाइए विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंपल, जो कि थोड़ा सिंपल से अलग है, जो आप पर्सनल लाइफ में उसको यूज़ कर सको, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सको. तो ये सारी चीज़ें इम्प्रेशन बहुत अच्छा देती हैं ड्यूरिंग, अगर आप किसी को मेल करते हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हो, तो दीज वर्ड्स रियली हेल्प टू इम्प्रेस. अगर आपके सामने वाला पर्सन इंटरव्यूअर है, कुछ ऐसे वर्ड्स आप बोलते हो, तो इससे पता चलता है कि यस यू प्रैक्टिस अ लॉट, आपने अपने ऊपर काम किया है. सो आपको ये लिस्ट आउट करना है. थर्ड स्टेप में बात करूँ तो आप इंग्लिश मूवी वॉच कर सकते हो. बहुत टफ वाली वॉच नहीं करना जो समझ में ही नहीं आती. कोई वेब सीरीज़ देख सकते हो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी, और हिंदी वेब सीरीज़ भी देख सकते हो विद सब टाइटल. आजकल तो मूवीज़ आती हैं जिसके नीचे सब टाइटल चलता रहता है, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि वो तो हमारी तरह डे टू डे लाइफ की चलती रहती है. तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपका अच्छा रहेगा. क्योंकि एक चीज़ और भी सुना है कि अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर. जो अच्छा सुन सकता है और समझ सकता है वही एक टाइम पे एक अच्छा स्पीकर बन सकता है. तो दिस इज़ रियली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप कोई ऐसी मूवी या कोई वेब सीरीज़ आपको मिले तो आप उसको देख सकते हो विद इंग्लिश सब टाइटल. ओके, सो इंग्लिश के नाम पे बहुत सारे लोगों को बोझ लगने लगता है. मतलब आप ये इंग्लिश का शब्द सुनते ही बहुत से लोग सर पकड़ लेते हैं, यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब है, मुझे समझ नहीं आती कैसे बोलना है, बहुत हेजिटेट होता हूँ, वर्ड भूल जाता हूँ, शाय हूँ, नहीं हो पाता, जब जब आता तो है मुझे बट जब मैं खड़ा होता हूँ किसी के आगे तो नहीं बोल पाता. सो डोंट मेक इट सो कॉम्प्लेक्स. लिटरली आई एम सेइंग कि उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ. डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन एक्सट्रीमली स्पेसिफिक वर्ड्स दैट यू विल नेवर गोइंग टू बी यूज. कभी कभार क्या होता है कि हम वो वर्ड पढ़ते हैं जो हमें आगे यूज़ ही नहीं करना, जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, और उसको लेके इतना वरीड हो जाते हैं कि यार मुझे नहीं आता. तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट टाइप ऑफ वर्ड. Okay, instead of focus on conversational English which is likely to be relevant in the exam, personal life, है ना, जॉब इंटरव्यू, वहाँ पे फोकस करना चाहिए. सो मेनी ऑफ पीपल फील लाइक बर्डन वाइल लर्न इन इंग्लिश. जब वो इंग्लिश लर्न करने थे वो उनको बोझ लगने लगता है कि यार एक सब्जेक्ट है इसको कंप्लीट करना है, बहुत बर्डन ले लेते हैं. सो आई वुड से कि फाइंड अ वे, गुड वे टू लर्न इंग्लिश इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट, फन, गेम्स, है ना. सो डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, यूज सिंपल वर्ड्स, है ना, एंड मेक इट फन लर्निंग, है ना. तो आप उस चीज़ को जल्दी सीख पाओगे. ठीक है. एंड आई वुड से कि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन परफेक्ट, यू ऑल नो. सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा.
So this is a very really important topic which I really want to discuss with all of you, because मैंने भी कई सारे इंटरव्यू लिए तो उसमें फेस किया कि many of स्टूडेंट्स जो आते हैं पढ़ के फ्रेशर होते हैं, they have very lack of communication skills, which is really important for every professional. If you are professional, everyone expecting from your side that you are a complete and perfect person in for their job. So thank you so much. This is one of the really important topic which I really want to discuss with all of you. I hope ये knowledge सबको अच्छी लगी हो, और I hope मेरे जो सजेशंस है वो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करते हों इम्प्रूव करने के लिए और आगे CMA के जॉब में प्रोग्रेस करने के लिए. देखो, मैंने चार्टर्ड नहीं किया, मैंने कंपनी सेक्रेटरी नहीं किया, सो आई कांट से अबाउट, मतलब उनके बारे में नहीं बता सकता, बट एज अ CMA, जो CMA के लिए एक परफेक्ट स्किल की ज़रूरत होती है वो मैं शेयर करता हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर and like and subscribe, please. Thank you so much.